Hi students, this is Ishtiyaq Shafi. This is the second lecture in power system. So in first lecture we discussed the basic structure of power system engineering, that it starts from the generation, it starts from the transmission, it starts from the distribution, and then it ends with the load centers. So if in the previous lecture we started at the generation, and then we discussed about why we have to increase the voltage. So the generating voltage were 11 kV or 6.6 kV, and then I discussed that we have to increase this voltage to certain levels, like these voltages can be like 132 kV, 220 kV, 400 kV, 600 kV, and it can go up to 1200 kV. Now this is what? This is the generating voltage and this is the transmission voltage. Now in the previous lecture we discussed that why we have to increase the voltage. At that instant I discussed that why we have to increase the voltage, because we want to reduce the losses in the transmission system. If you will see that, if this is the generation system and this is the load center, while actually the active power that has been generated by the generating power plants will be consumed by the load. And if you will see here, if my active power generation here is 500 megawatt, if my generation is 500 megawatt, and then I need to consume this 500 megawatt here. So we will say that the efficient power system network is that system in which the efficiency is maximum. So can I say in this language that the power generation, if the power generation is equal to the power consumption, if my power generation, that is 500 megawatt, is equal to power consumption, that is how much? 500 megawatt. So what will happen to the losses? Here losses will be equal to 0. So I can say that this power system network has got the maximum efficiency, that is equal to 1. But this is the ideal case. Actually what happens when we have to generate the power, the power, there are losses in the transmission network, there are losses in the distribution system, and in the load centers we need to consume the power that is being generated by the power plants. Now in order to reduce the losses, because we want that जो हमारे losses है ये तो zero के बराबर नहीं होगा, because as we know that we in generating power plant, when we generate the power, then there are losses in the transmission system, and those losses are being created by the three main parameters. And what are these three parameters? These three parameters are resistance, capacitance and inductance. I will come to that point. So these three parameters, they induce the losses in the system. So what we actually need, we want that type of power system network in which the losses are what? In which the losses are minimum. So in order to reduce the losses, what we are doing, we are increasing the voltage. Here the voltages are, these are the transmission voltages. If you will see on this slide, these are the transmission voltages. And this is what? This is a generating voltage. This is my generating voltage, right? This generating voltage depends on the design of the alternator or the synchronous generator. But why we have to increase the voltage? We have to increase the voltage because we want to reduce the losses. If you will see here, if I will take a circuit here, अगर मुझे यहां से losses को कम कराना है, right? What I need to do, I need to reduce this I. आपको पता है जो हमारे पास losses है, these are equal to I square R losses, right? These are the losses. So this resistance जो है, resistance parameter we cannot change. Why? Because this resistance parameter, it depends on the nature of the material used. अगर मेरे पास copper है, copper की resistance क्या है? कम है. अगर मैं aluminum की बात करूंगा, उसकी resistance क्या है? उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है. जो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क.
राइट. इफ यू विल गो टू द सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टेंस क्या है, कॉपर से क्या है, कॉपर से कम है. सो दिस आर पैरामीटर, जब भी आप डिजाइन करोगे एक पावर सम नेटवर्क, दिस आर पैरामीटर इज अ फिक्स्ड पैरामीटर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड. बट यहां पे जो करंट पैरामीटर है, इस करंट पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं. अब इस पर करंट को कैसे हम करेंगे कम. अगर ये मेरे पास, जितनी मेरे पास यहां पे आई ज्यादा होगी, उतना क्या होगा, उतने मेरे पास लॉसेस ज्यादा होंगे. सो आई नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ मेथड आई विल यूज थ्रू विच आई विल डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट आई. उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है जो जनरेटिंग पावर प्लांट है, यहां पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. Right? I will take one example here. If my generating voltage is 11 kV, और 11 kV कहां से आता है? It depends on the design of the generator, right? And मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया that it depends on ये generating voltage कैसे जनरेट हो जाती है, by Faraday's laws of electromagnetic induction. That is, whenever there is a change in magnetic field, and if the circuit is close to the change in magnetic field, then there is an induced EMF in that closed circuit. And ये जो यहाँ पे है, that is the generating voltage यहाँ पे है 11 kV. Now, if I will transmit the power at this generating voltage, अगर मैं पावर को ट्रांसमिट करूंगा इस जनरेटिंग वोल्टेज पे, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस आएंगे. सिंपल से एग्जांपल लूंगा मैं. अगर मेरे पास जनरेटिंग जो पावर है, इफ इट इज 20 मेगावाट, अगर मुझे इसे ट्रांसमिट करना है, और ये 20 मेगावाट क्या है, दिस इज द एक्टिव पावर. दिस 20 मेगावाट पावर जो है, इट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड एट द लोड सेंटर्स. तो यहां पे जो लोड है उसको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, 20 मेगावाट. बट बिकॉज बीच में क्या आएगा, देयर इज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. और इस नेटवर्क में क्या हो जाता है, इस वाले नेटवर्क में मुझे लॉसेस आ रहे हैं. और वो लॉसेस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज दिस आई पैरामीटर इज देयर. आई क्या है मेरे पास, आई ज्यादा है. अब इस आई को मैं कैसे कम करूंगा, इस आई को मैं कम कैसे करूंगा, बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना. आपको पता है जो ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. मैंने इसको यहां पे वोल्टेज को, फॉर एग्जाम्पल 132 केवी, 132 केवी पे इसको मैंने स्टेप किया. इनकमिंग वोल्टेज क्या है, 11 केवी, और आउटगोइंग क्या है, अगर मैं यहां पे लूंगा इसको, इनकमिंग है 11 केवी, और आउटगोइंग वोल्टेज क्या है इसकी, 132 केवी. तो मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया. नाउ यू नो द फॉर्मूला, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, P इज इक्वल टू VI, राइट. पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर. दैट मींस जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं ट्रांसफार्मर में, व्हाट विल हैपन टू द करंट, द करंट गोज डाउन विद द सेम फैक्टर. जिस फैक्टर से आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, उसी फैक्टर से जो आपकी करंट है वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है. अगर मेरी करंट यहां पे डाउन हो गई, इफ दिस करंट हैज बीन रिड्यूस्ड, व्हाट विल हैपन, जब ये करंट कम हो गई, ये भी कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया, राइट. जब ये डिक्रीज होगा, यहां पे क्या है, दिस इज एक्चुअली आई स्क्वायर आर. जब मेरा आई स्क्वायर पैरामीटर कम हो गया, व्हाट विल हैपन टू द लॉसेस, लॉसेस मेरे कम हो गए, राइट. सो बाय डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वी कैन डिक्रीज द लॉसेस इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क. सर अब यहां पे क्वेश्चन है, आपने, इफ यू विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड, तो यहां पे मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्टेज आपको बताया. सर कैन वी, अगर आपके पास, सर मेरे पास सर जनरेटिंग वोल्टेज जो है, सर ये 50 मेगावाट, इफ इट इज हाउ मच, दिस इज 50 मेगावाट. अब मुझे ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है, सर आई विल गो टू द मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि दिमाग तो वही बोल रहा है. क्यों, क्योंकि यहां पे ये जो वोल्टेज है, इसमें करंट क्या होगी, सर इसमें तो करंट बहुत कम होगी. अगर इसमें करंट बहुत कम होगी, दैट मींस व्हाट विल हैपन टू द लॉसेस, लॉसेस तो बहुत कम आएंगे. सर कैन आई यूज, जो मेरे पास 50 मेगावाट है, नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, कैन आई यूज 50 मेगावाट के लिए, कैन आई यूज 1200 केवी वोल्टेज? एंड योर reasoning is also valid. You are telling me, sir, whenever I increase the voltage, the current parameter goes down. When the current parameter goes down, that means मेरे जो losses है वो तो कम हो जाएंगे, वो तो least, it will be equal to the zero. So now the question arises, can I use for 50 megawatt 1200 kV? Right? So यहां पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, what type of voltage we will use for द जनरेटिंग पावर. मैं कौन सी वोल्टेज, क्या मैं कोई भी वोल्टेज ले सकता हूं यहां पे, और इज देयर एनी कंट्रोलिंग फिनोमेना थ्रू व्हिच आई हैव टू सी कि विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज आई हैव टू यूज फॉर व्हाट टाइप ऑफ, या व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिव पावर यू नीड टू बी transmitted from the generating power plant to the load center. Yes, there is a one formula, and that is जो आपका एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर जो है
अगर हम यहां पे देखेंगे, एक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. जो आपका एक्टिव पावर ट्रांसमिट करना है, इट डिपेंड्स कि आपकी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होगी. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जितना मेरा एक्टिव पावर बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, मेरा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स जब मैं 50 मेगावाट की बात करूंगा, मैं 1200 में नहीं जाऊंगा, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जितना मेरा एक्टिव पावर बढ़ रहा है यहां से, उतना मेरी ट्रांसमिशन वोल्टेज भी बढ़ रही है. या बेटा समझ? दैट मीन्स जितना मैं एक्टिव पावर को बढ़ा रहा हूं, उतना मेरा ट्रांसमिशन वोल्टेज भी क्या हो रही है, ट्रांसमिशन वोल्टेज भी इंक्रीज होनी चाहिए. राइट? सो दैट मीन्स फॉर 50 मेगावाट आई कैन यूज हाउ मच, 132 kV. अगर मुझे पावर बहुत है, इफ इट इज 1000 मेगावाट, इफ इट इज नाउ हाउ मच, 1000 मेगावाट. अब मुझे 1000 मेगावाट के लिए कैन आई यूज फॉर 1000 मेगावाट 132? नो. व्हाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. डायरेक्टली मतलब यहां पे क्या हुआ, डायरेक्टली इज दैट जितना मेरा एक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगा, उसी फैक्टर से मेरा क्या होना चाहिए, मेरा ट्रांसमिशन वोल्टेज भी इंक्रीज होनी चाहिए. दैट मीन्स फॉर 1000 मेगावाट आई कैन यूज 400 kV or I can use 800 kV. What? Transmission voltage. So there is a controlling parameter of choosing this transmission voltage. I cannot randomly choose any type of voltage, right? So we have learned that जितना हमारे पास एक्टिव पावर ज्यादा होगा, उतना हमें क्या, उतना हमें ट्रांसमिशन वोल्टेज भी ज्यादा रखनी पड़ेगी. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड पॉइंट मैंने बताया दैट व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज, बिकॉज ये जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, इफ यू विल सी volume of the conductor, it is inversely proportional to what? To the transmission voltage, square of the transmission voltage. That is what? जितना हम यहां पे ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जितना हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना मेरे पास जो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कम हो जाएगा. सो दिस वाज अनदर advantage of having the transmission voltage on the higher side. This is the main reason. जो भी हमारे पास generating voltage होते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं at the generating power plants, वहां पे क्या होते हैं, वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म, they always increase the voltage, वो स्टेप डाउन वोल्टेज नहीं करते हैं. उसके बाद जो भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिसीविंग स्टेशन आएगा और ग्रिड स्टेशन आएगा, या हमारे पास सब स्टेशन आएगा, जो भी हमारे पास उसके बाद स्टेशन आएंगे, उसमें हम करेंगे स्टेप डाउन वोल्टेज. राइट? अब यहां पे वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ यू विल सी हियर, यहां पे हम, मैंने बताया कि दैट देयर आर नॉट टू advantages of increase the voltage. One is that it reduces the losses in the transmission and distribution system. Second point is that it reduces the volume of the conductor. जब volume of the conductor क्या हो जाएगा, कम, तो it affects my cost also. अगर मैं यहां पे कंडक्टर लूंगा of larger area, तो दैट मीन्स देयर कॉस्ट विल बी हायर. सो जितना हम यहां पे वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, उससे वहां पे क्या हो जाता है, उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, सर जो हम यहां पे वोल्टेज इंक्रीज का, एक तो मैंने बताया आपको पावर, ये एक्टिव पावर का. सेकंड पॉइंट इज सर, क्या हम ये जो वोल्टेज है, कैन वी यूज मैक्सिमम वोल्टेज? व्हाई देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर? आपने हमें बताया सर लिमिटिंग फैक्टर इज 1200 kV, है ना सर? व्हाई वी कांट गो बियॉन्ड दिस 1200 kV ऑल्सो? जो आपने मैक्सिमम, इन प्रीवियस केसेस इट यूज्ड टू बी 800 kV. We used to say that the maximum transmission voltage जो है it is 800 kV, but nowadays it can be up to 1200 kV. So can we go beyond this? क्या हम इसे आगे ले सकते हैं? Can we go to 2000 kV? Can we go to 3000 kV? And you are telling me that, sir, as we increase the voltage, you taught us that the transmission current goes down. If the transmission current goes down, that means my losses goes down. So why, sir, you are putting the limiting factor here? आप यहां पे सर लिमिटिंग फैक्टर क्यों ले रहे हो कि ये 1200 kV तक ही जा सकता है? Why it can't go beyond like 2000 kV, 3000 kV? अब देखो यहां पे, ये आप जिंदगी भर याद रखना that there are two main electrical parameters here, that is voltage and current. Voltage and current. I will come to the current first. ये जो current है, current decide करती है how much is the cross section of the conductor.
अगर हम एक कंडक्टर की बात करेंगे, बियर, हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं। अब यहां पे जो करंट है ये जो करंट है ये डिसाइड करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। डिसाइड क्या करता है? अगर मेरे पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर देखना कि कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 एम्पियर करंट है, राइट, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 4 mm स्क्वायर cable. This is the size of the conductor. Now, if the current goes beyond, for example, if it is 20 ampere, can I use this 20 ampere for 4 mm square? नहीं, ये जल जाएगी. It cannot bear the load of this 20 mm square. तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा. It is 10 mm square. So यहां पे 10 एम्पियर के लिए मुझे 4 mm square, 20 एम्पियर के लिए 10 mm स्क्वायर। तो यहां पे हम एक रिलेशन निकालेंगे, दैट इज जो हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ द, इट्स अ यूनिवर्सल रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ, दैट इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट। What actually is a load current? Load current is that current which actually comes from the source to the load. अब यहां पे क्या है? That area of the conductor, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी लोड करंट कितनी होनी चाहिए। That means it depends on the current carrying capacity of the cable या current carrying capacity of the conductor, which is also known as current ampacity. Current ampacity is defined as how much amount of current is flowing through the conductor. अब यहां पे जो एरिया ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा? ये करेगा लोड करंट कितनी होगी, विच मीन्स दैट जितना हमारे पास एरिया ज्यादा होगा उतनी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। जितना हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर कम होगा उतना जो होगा क्या? लोड करंट भी क्या होगी? कम होगी, राइट? दिस इज वन। अब दूसरा जो है ये आप हमेशा याद रखोगे, दैट द एरिया ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड करंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। अब दूसरा जो पैरामीटर है दैट इज वोल्टेज पैरामीटर। ये जो वोल्टेज पैरामीटर है ये डिफाइन है, ये करते हैं मुझे डिफाइन यहां पे इंसुलेशन। फर्स्ट मैंने बताया दैट करंट पैरामीटर डिफाइन इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड दिस वोल्टेज पैरामीटर tells me that how much amount you have to put on the insulation. इंसुलेशन का साइज कितना बढ़ाना है? क्या इंसुलेशन? दैट मींस जितनी मेरे पास वोल्टेज ज्यादा होगी उतना एरिया ऑफ द इंसुलेशन भी क्या होगा? ज्यादा, और उतना साइज ऑफ द इंसुलेशन क्या होगा? ज्यादा, राइट? और जितना मुझे ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होगी उतना मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे साइज ऑफ द इंसुलेशन कम देनी पड़ेगी। Now coming to the question जो मैंने पूछा था, that why we can't go beyond this 1200 kV? As we increase the voltage, what will happen to हमारे पास जो वोल्ट 1200 kV, अगर उसे भी आगे जाएंगे मुझे उसमें क्या देना पड़ेगा? यहां पे मुझे उसमें इंसुलेशन बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। As we just saw that वोल्टेज जितनी इंक्रीज हो जाएगी उतनी इंसुलेशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट मींस जब यहां पे मेरे पास वोल्टेज क्या होगी? मेरे पास वोल्टेज इंक्रीज हो गई तो मुझे इंसुलेशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। जितना हम इंसुलेशन ज्यादा यूज करेंगे एक पावर सिस्टम नेटवर्क में उतना क्या होगा? इट इफेक्ट्स माई कॉस्ट, उतना मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है, उतना मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है, विच मीन्स दैट आई डोंट वांट दिस। एफिशिएंट सिस्टम यहां पे ये नहीं होता है कि सिर्फ क्या कि मेरा करंट पैरामीटर, मेरे लॉसेस कम हो गए। नो, वी हैव टू आल्सो सी कि उसमें कॉस्ट कितना जा रहा है। सो दैट मीन्स जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन सिस्टम या फॉर द स्विच गियर सिस्टम या केबल्स, अगर आपके पास अंडरग्राउंड केबल्स है उसमें इंसुलेशन भी क्या बढ़ जाएगी। जब आपकी इंसुलेशन बढ़ जाएगी तो आपका कॉस्ट भी क्या? कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द इंसुलेशन, क्योंकि मुझे फिर इंसुलेशन भी क्या देनी पड़ेगी? इंसुलेशन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो देयर इज अ बैलेंस फैक्टर फॉर दैट। अनदर पॉइंट इफ आई नीड टू डिस्कस ऑन दैट, अनदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं ट्रांसमिशन टावर लूंगा एक, राइट, एक ट्रांसमिशन टावर लूंगा यहां पे,
right? अब what will happen if these are the cross arms? This is a transmission line. अब क्या होगा, जितना मैं यहां पे वोल्टेज लेवल बढ़ाऊंगा इसका, अब मैं यहां पे वोल्टेज लेवल जितना बढ़ाऊंगा, इफ आई विल कीप इट 1200 इज द मैक्सिमम, और वी कैन गो बियॉन्ड, व्हाट विल हैपन? What will happen? देखो यहां पे क्या, एक तो मैंने बताया इंसुलेशन, सेकंड पॉइंट आई वांट टू डिस्कस विद दिस, व्हाई वी कांट गो बियॉन्ड 1200 kV. सेकंड रीजन आई एम डिस्कसिंग विद यू हियर. अब यहां पे आपको पता है दिस इज द ग्राउंड. अब इसका पोटेंशियल क्या है? ग्राउंड यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दैट द पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड इज ऑलरेडी टेकन एज 0. हम बोलते हैं कि ये जो ग्राउंड का पोटेंशियल है इट इज 0 पोटेंशियल. अब यहां पे जो वोल्टेज है 1200, आपको पता है जब भी हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे देयर इज अ कैपेसिटेंस फिनोमेना, दिस एक्ट्स एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हियर. यहां पे क्या है, दिस ट्रांसमिशन लाइन इज एट 1 वोल्टेज लेवल एंड दिस ये जो ग्राउंड है इज एट अनदर लेवल, और बीच में हमारे पास मीडियम क्या है, बीच में हमारे पास मीडियम होता है एयर, राइट? तो यहां पे क्या है, ये जो कैपेसिटेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वोल्टेज डिफरेंस. अब यहां पे क्या है, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम होगी जितना वोल्टेज कम होगा. अब यहां पे जो वोल्टेज डिफरेंस दैट्स 1200, तो इसमें कैपेसिटी इफेक्ट क्या रहेगा, इसमें कैपेसिटी इफेक्ट रहेगा ज्यादा. अगर मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो कैपेसिटी इफेक्ट कम रहेगा. नाउ देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, ये जो फिनोमेना सारा है इट एक्ट्स लाइक अ कैपेसिटर. अब यहां पे क्या है, इफ आई विल मेक दिस डायग्राम लाइक दिस, दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन एंड बीच में क्या हो गया, इट्स अ कैपेसिटर, और यहां पे क्या है, दिस इज अ ग्राउंड. अब जितना हम यहां पे ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज बढ़ाएंगे द कैपेसिटेंस और द कैपेसिटिव इफेक्ट विल आल्सो इंक्रीज. जब मेरा कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मेरे पास जो करंट्स है, चार्जिंग करंट्स है, वो यहां पे क्या ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. ये जो करंट्स यहां पे आएंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू लिसन व्हाट आई विल से हियर, दैट अगर यहां पे कोई बंदा चल रहा है नीचे, इवन दो ही हैज नॉट टच्ड एनी लाइव पार्ट्स, अगर उसने किसी तार को हाथ में लगाया, स्टिल ही विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड. वो किससे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दी चार्जिंग करंट्स, आईसी करंट्स. And the magnitude of these charging currents depends on what? On the magnitude of the transmission line. अब ये जितना यहां पे चार्जिंग करंट्स ज्यादा होंगी उतने यहां पे जो मेरे पास चार्जिंग करंट्स है इट विल बिकम मोर डेंजरस. जब ये डेंजरस बन जाएंगे, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो यहां पे चलेगा, ही विल गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय दी चार्जिंग करंट जो यहां से यहां फ्लो कर रही है. सो दिस ट्रांसमिशन लाइन विल बिकम वेरी मच डेंजरस. अब इसको हम क्या करेंगे, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला एक पढ़ी थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अब यहां पे मैं आऊंगा, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. इसका मतलब क्या है, जितना मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इंक्रीज करूंगा उतना मेरा कैपेसिटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, right? Because C is inversely proportional to D. D is what? Distance between the two parallel plate. अब यहां पे जो दो प्लेट्स है, यहां पे दो प्लेट्स कौन सा है, मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और मेरे पास एक ग्राउंड है. और जितना मैं इसमें डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, बाय दिस रिलेशनशिप माय कैपेसिटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम. जब मेरा कैपेसिटिव इफेक्ट कम हो जाएगा मेरे चार्जिंग करंट्स कम आएंगे. तो इसका मतलब क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा हाइट देनी पड़ेगी. आई नीड टू इंक्रीज द हाइट. और मुझे हाइट, जब मैं ट्रांसमिशन लाइन की हाइट इंक्रीज करूंगा वो मैं कैसे दूंगा, हाउ आई कैन इंक्रीज द हाइट, बाय हैविंग द ट्रांसमिशन टावर्स. तो उसमें भी कॉस्ट, उसमें जो बेसमेंट देनी है, उसमें जो फाउंडेशन देनी है ट्रांसमिशन टावर को, वो भी हमें इंक्रीज. सो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर्स. सो द लिमिटिंग फैक्टर इज टू, वन इज द वोल्टेज फैक्टर, वन इज द इंसुलेशन फैक्टर एंड अनदर इज द कंस्ट्रक्शन, जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आ जाता है. In the next lecture, we'll discuss the transmission and effects. Hope you soon in the next lecture. Bye bye. Take care.